thinking of what I should speak. I was uh, not really sure of what I should speak. मुझे अनिश्चितता थी कि मैं आज क्या बांटूं। So then I came to the conclusion that this is what God wants me to speak. और फिर मुझे महसूस हुआ कि प्रभु मुझसे यही चाहता है कि मैं बांटूं आज। So this message is basically not some Bible study. आज का जो है वचन का अध्ययन नहीं है। It is basically a small like a testimony of my life. मेरे जीवन का एक साक्षी है। Uh, testimony of the present period of my life. जो वर्तमान काल है उसका मेरे जीवन में जो हो रहा है उसका एक साक्षी है। So we all have experienced this 2020, which was a very unusual year for all of us. हम सब ने इस साल जो 2020 है एक बहुत ही अलग सा जो साल है, इसको हम सब ने अनुभव किया है। The month of March or April, the pandemic came to India and all over the world. मार्च के महीने में ये जो महामारी है वो पूरे संसार में फैल गया। And we have never experienced anything like that ever in our life. और हम किसी ने भी ऐसा एक चीज कभी भी हमने महसूस नहीं किया है। And not only in Mumbai or India, but all over the world, the same thing, same story. सिर्फ मुंबई या भारत में ही नहीं, लेकिन सारे विश्व में ये लोगों ने अनुभव किया है। So when such a thing has happened of such great magnitude, then we begin to wonder what is the reason for all this. जब ऐसे बातें होती है तो हम सब सोचने लगते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। So many of us, many Christians, were praying that prayer of Second Chronicles. If my people who are called by my name shall humble themselves and repent and all that, and then God will heal the land. जो दूसरे इतिहास में लिखा गया है वचन में कि अगर मेरे लोग पश्चाताप करेंगे और मुझे पुकारेंगे तो उनमें जो है चंगाई आएगी। So I myself was asking the Lord, what are you speaking? तो मैं खुद प्रभु से पूछ रहा था कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। What are you speaking to me and to the whole world in general? कि आप मुझसे और सारे संसार से क्या कहना चाहते हो। So particularly, I was keeping on asking the Lord, what are you talking? What do you want me to learn from this? और मैं प्रभु से बार-बार मांग रहा था कि प्रभु आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो। Is there something that you want to speak to me? ऐसी कोई बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हो। And for a period of time, for a month or two and all, I was not getting an answer that way. और 2-3 महीने के लिए मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। Or you can say 2-3 months I was thinking, what is the reason for all this happening? और मैं ऐसे अपने आप में सोच रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। But I felt that during this time of say now 6-7 months that God was speaking to me things which has made an impact in my life, which has made an impact in my life. लेकिन मैंने बाद में देखा कि प्रभु ने मुझसे ऐसे कुछ बातें की जिसके कारण मेरे जीवन में बहुत भारी प्रभाव आया है। He was speaking to me about the very need in my own life. प्रभु मुझसे मेरी खुद की आवश्यकता के बारे में बात कर रहा था। So I want to share some of the things, and when I look back, he has spoken in this period more than I think ever in my life. At a short period, he has spoken so much that I have never experienced ever in my life. तो अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसे ही अनुभव हुआ कि प्रभु ने मुझसे इस समय में बहुत ज़्यादा बात किया है जो पहले नहीं किया।
Okay. So basically, this is I want to share one by one what it is. और एक एक करके मैं बांटना चाहता हूँ। So the first one is to be a nothing and a nobody. पहली बात ये है कि मुझे शून्य बन जाना है और मैं अपने आप को ज़्यादा महत्व ना दूँ। So this is what God is speaking to my own heart. ये बात जो है प्रभु मुझसे मेरे खुद से व्यक्तिगत रूप से मुझसे बात कर रहा है To be a nothing and a nobody. कि मैं शून्य बन जाऊं और अपने आप को ज़्यादा महत्व ना दूं। I remember that I used to go to some particular place and I used to feel bad because people would not treat me as I wanted to. मुझे याद है कि जब मैं किसी जगह में जाता था और लोग मेरी जो अ, ठीक तरह से मायने नहीं रखते थे तो मुझे बहुत अ, अफसोस होता था। So in 2 Corinthians 12:11 it says, दूसरा कुरिन्ती 12 अध्याय और उसका 11 वचन में ऐसे लिखा है, the Apostle Paul says, I have become foolish, you yourselves have compelled me. Actually, I should have been commended by you, for in no respect was I inferior to the most eminent apostles, even though I am a nobody. मैं मूर्ख तो बना परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ। Even though I'm a nobody. Is that? Yeah. So I was struck by that word, that phrase, even though I am a nobody, and this is the great Apostle Paul. और मुझे ये जो वचन है ये मुझे बहुत प्रभावित किया, जहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। Yeah. So that challenged me that I also should be a nobody. तो मुझे एक चुनौती मिली कि मुझे भी अपने आप को कुछ भी नहीं मानना चाहिए। Then in Galatians 6:3 it says, for if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. और गलातियों का 6वां अध्याय और उसका 3रा वचन में कहा है, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। So it's very natural for all of us, not only for me, but for all of us to feel that we are something more than what we are when we are actually nothing. ये एक बहुत ही स्वाभाविक बात है कि हम सब अपने आप को कुछ समझते हैं। अगर हम कुछ भी नहीं है फिर भी हम अपने आप को कुछ समझते हैं। That's why we get disappointed when people don't treat us in some way or the other. तो इसीलिए हम निराश हो जाते हैं जब लोग हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। So the right thing actually for us is to say that we are nothing. तो जो ठीक बात यही है कि हम कहें कि हम कुछ भी नहीं हैं। Then we will not be disappointed. तो फिर हम निराश नहीं होंगे। I was challenged by Exodus chapter 3:11. और मुझे इस वचन से भी एक चुनौती मिली जो निर्गमन 3:11. तीसरा अध्याय और 11वां वचन। Here was Moses who was, we know the story of Moses, but now he is in the wilderness, and after 40 years, just like a shepherd, with nothing else than doing this job as a shepherd. हम जानते हैं मूसा के बारे में कि वो जो अभी मरुस्थल में है और वो जो भेड़ बकरियों को चरवाता है। So when God says to him that you are supposed to lead my people out of Egypt, then he said in verse 11, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the sons of Israel out of Egypt? जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम्हें मिस्र से मेरे लोगों को बाहर निकाल कर आना है, तो मूसा ने 11वें वचन में वो कहते हैं, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। So Moses said this from his heart. He was not trying to be humble, but he said, who am I?
हम देखते हैं कि जो मूसा है उसने अपने दिल से ये कहा, सिर्फ नम्रता दिखाने के लिए नहीं, दिखावटी रूप में नहीं। And the Apostle Paul also was not trying to be humble when he said, I'm a nobody. और प्रेरित पौलुस भी ये प्रयास नहीं कर रहे थे कि अपने आप को नम्र दिखाएं। These were words from the heart. ये जो वचन है उनके दिल से उन्होंने कहा। So that was something that challenged me of to be a nothing and a nobody. तो ये बात मुझे एक चुनौती जैसे हुई कि अ, मैं अपने आप को कुछ ना मानूं। The other thing the second thing which I want to share was to be free from envy and jealousy. और दूसरी बात ये है कि मुझे ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहना चाहिए। I can tell you that envy and jealousy was like a big giant in my life. मैं कह सकता हूँ एक जो ईर्ष्या है मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा दानव के रूप में था। Whenever I hear something good, maybe in my friends or my relatives or my close people whom I know, suddenly my mood comes down. अगर मैं अपने रिश्तेदारों या अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छा हुआ ऐसे मैं सुनता हूँ तो फिर मेरा जो मैं बहुत ही निराश हो जाता था, उदास हो जाता था। Somebody else's children, the ones whom I know, doing better and getting a better job and all sort of things like that, or maybe even some brother preaching and others appreciating. That news of that would make my mood down. अगर किसी जिन्हें मैं जानता हूँ उनके बच्चों के साथ अच्छा हो, उन्हें अच्छा जो नौकरी मिले या किसी के प्रचार करने से लोग उनकी प्रशंसा करें, ये सब सुनने से मैं निराश हो जाता था, उदास हो जाता था। So I felt that when I came to know that, and I said, this is not the way I want to live. तो जब मुझे ये अनुभव हुआ तो मैंने मुझे ऐसे लगा कि मुझे ऐसे नहीं जीना है। So I had that habit of taking to the Lord whenever I was in need. So I said, Lord, this is a great need in my life, and I want this out for my life. तो मैं मेरी सब ज़रूरतों को प्रभु के सामने लेकर जाता था और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे ऐसे इससे छुटकारा चाहिए। So James 3:14 says, but if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, do not be arrogant and so lie against the truth. याकूब 3 अध्याय और 14वां वचन, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। So I said, Lord, I want to be at any cost. You ask me anything, sure. Whether it's money or whatever, God does not our money. But I said, Lord, at any cost, I want this jealousy out from my life. तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप मुझसे कुछ भी, चाहे पैसा हो चाहे कुछ भी हो, प्रभु हमारे पैसा नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा प्रभु आपको जो कुछ चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं, लेकिन मुझे इससे छुटकारा चाहिए। Lord, I want to rejoice when I hear such things, and I want to rejoice with those who rejoice, and I want to weep with those who weep. और मैंने कहा प्रभु से कि मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ और जो खुशी मनाते हैं उनके साथ मैं खुशी मनाना चाहता हूँ और जो दुखी हैं उनके साथ मैं दुखी होना चाहता हूँ। John the Baptist says in John chapter 3 verse 30, he must increase but I must decrease. यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 30वें वचन में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं कि अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। So I said, Lord, I want the same spirit in my life. तो मैंने प्रभु से कहा मुझ में एक ऐसी ही आत्मा मैं चाहता हूँ। So I would pray like this whenever I was tending to feel jealous about somebody doing well or even doing ministry well. I said, Lord, let them be blessed much more and even much more than me.
तो मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु, जब मैं उनके बारे में कुछ भलाई सुनता तो मैं कहता, प्रभु आप उनको और अधिक आशीष दे। So I found that liberty coming when I used to pray, that they would be blessed even more than me. It's all right, but they would be blessed. So God gave. Yeah. हाँ, और फिर मैंने ऐसा प्रार्थना किया कि प्रभु आप ऐसे ही उनको और अधिक आशीष दें। Yeah. Third one which I wanted to share was to be free from the opinion of men. और जो चौथा बात है वो मैं ये बांटना चाहता हूँ कि हमें लोगों के राय से कैसे मुक्त हो सकते हैं। To feel, what this brother or what this person thinks about me. हम इस पर ज़्यादा जो महत्व ना दे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। I used to think that what some of the brothers would think. Do they think that I am, spiritual or mature? मैं ऐसे सोचता था कि जो भाई लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि मैं सिद्ध हूँ या मैं आत्मिक हूँ, And things like that. Things like that. So that would make me, towards them, I would feel an insecurity. तो मैं उनके प्रति मेरे जीवन में एक असुरक्षता जो है वो प्रकट होता था, Because I was bothered about their opinion. क्योंकि मैं उनके राय में बहुत चिंतित रहता था। And all insecurities are like valleys. और जो भी ऐसे असुरक्षिता जो हम महसूस करते हैं वो एक अ, घाटी के समान है। When they are proud, it's like a mountain. जब हम अभिमानी हैं तो वो एक पर्वत के समान हुआ। But when there is insecurity or all those are depressions in our life. तो जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को तो वो एक घाटी के समान है। But God's promise is that every valley will be filled up. लेकिन परमेश्वर का जो वादा है कि हर एक घाटी या दबा हुआ जमीन वो उठाया जाएगा। Luke chapter 3 verse 5 to 6 it says every ravine is a deep narrow valley. लूका Let me just say the तीसरा statement, not reading the full one. Luke 3 in verse 5. तीसरा अध्याय और उसका 5वां वचन, हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। Yeah. So every valley will be filled up. That is the promise of God. ये जो है परमेश्वर का वादा है कि जो हर घाटी भर दी जाएगी। And John 12:43 says that for they loved the approval of men rather than the approval of God. और यूहन्ना 12 के 43. 43 में ऐसे लिखा है, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। So when I'm looking for the opinion of people, I'm basically saying that do they approve me? जब हम लोगों के राय के बारे में इतना सोचते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि हम मनुष्यों की प्रशंसा चाहते हैं। What I should do is I should always seek the approval of God. लेकिन ये जो महत्व रखती है कि मैं परमेश्वर का जो प्रशंसा को चाहूँ। Romans 2:29 is a very challenging verse for me, encouraging verse for me. रोमियो 2 का 29 मेरे लिए एक चुनौती है। It says, but he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that which is of the heart, by the Spirit, not of the letter, and his praise is not from men but from God. पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। So God has given me the desire to seek, to look for His praise and not for the praise of man. तो प्रभु ने अभी मुझे ये इच्छा दी है कि मैं परमेश्वर की प्रशंसा को चाहूँ। And He's given me the grace not to look for the opinion, to be bothered about the opinion of people. और
प्रभु ने मुझे ये अनुग्रह दिया है कि मैं लोगों के जो राय है उसके बारे में मैं चिंतित ना रहूं. The next one which God particularly spoke to me was to be free from partiality and partiality or personal favoritism and also prejudice. और छठवीं जो बात है वो है कि मैं जो पक्षपात से और व्यक्तिगत लोगों के प्रति कुछ व्यक्तिगत पक्षपात दिखाना या लोगों के बारे में पहले से ही मेरे मन में कुछ बुरा विचार होना, इन सब बातों से मैं मुक्त रहूं. So I used to have this partiality, or rather unconsciously, I used to look, go towards people who are well-to-do and educated and neglect the others. मैं मेरे बिना जाने मैं मेरी यही मैं ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो धनी हैं, उनके प्रति मेरा आकर्षण उनके प्रति होता था. So about partiality and personal favoritism written very much in James chapter 2. याकूब दूसरा अध्याय में पक्षपात के बारे में साफ-साफ लिखा है. So God was telling me, I actually always seek not to be partial, but I became more sensitive about that. मैं दिल में तो चाहता हूँ कि मैं पक्षपात ना दिखाऊं, लेकिन प्रभु ने मुझे अभी और ज़्यादा उसके बारे में चेतावनी दी है. The other thing God spoke to me was from Luke chapter 16 verse 15. और दूसरी बात ये है कि लूका 16 का 15. It says, and he said to them, you are those who justify yourselves in the sight of men, but God knows your hearts, and this is the word, for that which is highly esteemed among men is detestable in the sight of God. उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, वो परमेश्वर के निकट घृणित है. So God particularly showed me that how I was so much valuing, good looks and a fair skin, or rather education and a good family, and I say some things. Those words comes out from my mouth, and God says that these are all which are highly esteemed among men are detestable in the sight of God. तो मैंने ये देखा कि जो भी मैं मनुष्य के रूप में जिन चीज़ों को मैं महान समझता था, जैसे कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो या ज़्यादा पैसे वाले हो या अच्छे परिवार से हो या गोरे हो, ऐसे लोगों से जो मैं बहुत महान समझता था, प्रभु उसको घृणा से देखता है. So I want to see as God sees, as it says in 1 Samuel 16 verse 7, it says, but God sees not as man sees. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे प्रभु देखता है वैसे मैं भी देखूं. So जैसे पहला समूएल 16 का 7 में लिखा है कि प्रभु जो है मनुष्य के समान नहीं देखता. So that is one thing which I want to God to really change in my life. He's spoken to me, and I trust whenever He speaks, the work already starts. जब प्रभु हमसे बात करता है तो और हमें अपने गलतियों के बारे में हमें दिखाता है, तो प्रभु ने वो काम जो है वो शुरू कर दिया है. For example, I want to just say that when you see a black African and a white-skinned European, for me, very ashamed to say these things. For me, I tend to feel, because they don't look so beautiful, I tend to feel a little bit low about them.
उदाहरण के लिए अगर मैं एक जो काला है और जो अफ्रीकी लोग हैं उनको मैं देखता हूँ, और जो गोरे जो जैसे अमेरिका के लोग हैं उनको मैं देखता हूँ, तो मेरे दिल में जो काले अफ्रीकी लोग हैं उनके प्रति मेरे दिल में एक घृणा होती थी. So it's so bad actually, this sort of way of thinking, because in God's side it is totally different. ऐसा देखना और सोचना बहुत बुरी है, क्योंकि परमेश्वर लोगों को ऐसे नहीं देखता है. So how far away from God's standard I am, I can see. तो मैं प्रभु के जो स्तर है उससे कितना दूर हूँ मुझे समझ में आता है. So I know that as He has shown these giants and He has shown these kings, that they will be defeated from my life. तो मैं जानता हूँ प्रभु ने मुझे ये जो दानव है मेरे दिल में इनको मुझे दिखाया है, तो एक दिन प्रभु उनको पूरी तरह पराजित करेगा. The next one I want to share is to be free from the expectations and demands. और दूसरी जो बात है कि सातवां जो बात है वो ये है कि मैं लोगों के जो उम्मीद है और जो मांग है उससे मैं मुक्त रहूं. I received a small message from one of our ones whom I know, saying that a tussle between convictions and expectations from others. एक व्यक्ति जो जिसे मैं जानता हूँ उनसे मैंने मुझे एक वचन मिला कि ऐसा एक संघर्ष जो धारणा और लोगों के उम्मीद उसके बीच में एक संघर्ष. So I found that word particularly spoke to my heart. तो मुझे उस बात ने मेरे दिल से बातचीत किया. So I have certain convictions. मेरे दिल में कुछ ऐसी धारणाएं I have certain standards. कुछ ऐसा स्तर है मेरे दिल में. Maybe because after becoming a Christian, my standards have gone up. तो मेरा जो स्तर है वो बड़ा है जब मैं ईसाई बन गया, मैं प्रभु में विश्वास करने लगा हूँ. But when I expect that others also should keep the standard, then I come to unrest. और लेकिन जब मैं उम्मीद लोगों से करने लगता हूँ कि वो भी उसी स्तर तक पहुँचे, तो मेरे दिल में अशांति आ जाती है. Like I believe you should be on time for things, or other should be prompt in repaying something, or things like that. There are so many number of things like that. तो ऐसे मेरे दिल में कई धारणाएं हैं, जैसे मैं अपने आप के लिए रखता हूँ, जैसे समय पर किसी जगह में जाना, या शीघ्र ही जो भी हमारा कर्ज है उसे चुका देना. ये सब बातें जब मैं दूसरों से ये उम्मीद रखता हूँ जो मैं अपने आप के लिए रखता हूँ, तो मेरे दिल में अशांति आ जाती है. To have unrest and uneasiness is not God's will at all. लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि मेरे दिल में ऐसा शांति हो. So these are expectations where we must where I must not allow these expectations to rule me. तो ऐसी उम्मीदों को मेरे दिल में मुझे राज करने के लिए मौका नहीं देना चाहिए. Yeah. Another thing is that there are some demands within us. और दूसरी बात है कि हम लोगों से कुछ मांग रखते हैं. That somebody should treat me, or somebody should respect me, or things like that. कि लोग मुझे सम्मान दे, आदर दे. Like, for instance, my wife should come and give me a cup of coffee in the morning. कि मैं जब सुबह उठता हूँ कि मेरी जो पत्नी है वो मेरे लिए एक कप कॉफी बना के दे. Or my children should do this and that. कि मेरे बच्चे मेरे लिए ये करें या वो करें. All sorts of things. There are some demands within me. तो मेरे दिल में ऐसी बहुत सारी मांग है. So I felt all these God speaking to me, and there are one or two more, but I'll just end up with this time with this. तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं मेरे दिल में, लेकिन मैं आज इससे ही
इस बात से ही मैं समाप्त So करता हूँ। I want to just say that God has answered my prayer of my asking, like, Lord, what are you talking to me? तो प्रभु ने मुझसे मेरे जो प्रार्थना है उसका उत्तर दिया है कि प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं। Lord, I can say, I can thankfully tell him, Lord, you have spoken so much to me. मैं अभी पूरे दिल से प्रभु से धन्यवाद कह सकता हूँ कि प्रभु आपने मुझसे ऐसा बात किया है। And those are treasures which will last for eternity. ये एक ऐसी संपत्ति है जो अनंत काल तक स्थिर रहेगा Much more valuable than money. और ये जो है पैसे से बहुत ही मूल्यवान है। It's the life of Jesus which can come to us. ये है वो जो प्रभु यीशु का जीवन जो मेरे स्वभाव का भाग बन जाए। So God is faithful to speak to us. तो प्रभु बहुत ही विश्वास योग्य है हमसे बात करने में। Amen. Amen. एक्चुअली आज मुझे जैसा लगा कि लॉर्ड ने मेरे से बात बहुत दिन से मैं अपने आप को बहुत पीछे समझ रही थी और लॉर्ड ने जैसे बात किया उसके लिए मैं लॉर्ड का धन्यवाद देती हूँ ब्रदर मैथ्यू के लिए कि उन्होंने हर एक जो भी पॉइंट्स बोले मुझे लगा कि वो सेम मेरी लाइफ में भी वही चीज लागू होता है। I want to thank the Lord that whatever Brother Matthew was sharing, all those things God has spoken to me also, and all these things are applicable in my life also. जैसे हम देख रहे हैं कि हम लोग हमारे खुद की लाइफ में हम परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है वो सोचे बिना हम लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे वो हम ज्यादा सोचते हैं। And if we see in our lives that so many times we think that instead of thinking that what God is thinking about us, we think more about what people will be thinking about us. यहाँ पर ही सोसाइटी में मेरी एक फ्रेंड है तो उनका हस्बैंड का मतलब जॉब इतना ठीक नहीं है और वो हमेशा मुझे बोलती है अरे तेरा हस्बैंड तो रेलवे में है लाइक तू एकदम मतलब तेरा बहुत अच्छा है लाइक इस तरीके से वो बात करती है मेरे से। So in our society, I have a friend, and her husband's job is not a very good one, and so many times she talks to me like you are blessed that your husband has such a nice job in railways. तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग मैं डीमार्ट गई थी और वहां पर वो डीमार्ट में मुझे मिली। So one day what happened that I went to DMart and I met her in there. और मैंने देखा कि मतलब ट्रॉली के अंदर मैंने सस्ता वाला सर्फ डाला था। So in my trolley I had put a detergent that was little less costly. और मैंने उसके ट्रॉली में देखा उसने एकदम हाई-फाई एकदम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सर्फ बाय किया था। And in her trolley what I noticed was that a detergent was kept and that was a very costly one. हाँ, तो मुझे थोड़ा सा शर्म फील हो रहा था तो मैंने अपना मेरा जो सर्फ था वो मैंने हाइड करने का कोशिश किया किसी और चीज से। So I was feeling little awkward, so I tried to hide my detergent with some other things in my trolley. Yeah. टाइम पर तो मुझे ऐसा लगा कि वो सोचती है कि इसका हस्बैंड रेलवे में है और ये इतना सस्ते वाला सर्फ यूज कर रही है और मेरा देखो मैं इतना अच्छा वाला सर्फ यूज कर रही हूँ। ये मेरे दिमाग में थॉट आया उस टाइम पे। So at that moment, the thought which came to my mind was that she will be thinking that even though that my husband is in railway, and in spite of that fact, I'm using such a low quality and less costly detergent. और जब हम घर पे आए वो हमारे से पहले आ गई थी फिर उसने मुझे बोला आपका कितना बिल हो गया डीमार्ट में। So when we reached home, she had come before us and she asked us that what was your bill in DMart? तो मैंने उनको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया बट उन्होंने सामने से मुझे रिस्पॉन्स किया कि मेरा तो 7,000 6,000 बिल हो गया। I didn't responded her that time, but she herself she started to tell that our bill was around 6,000 7,000. So I really thank God कि I have a really godly husband who always
encourage me and corrects me. Yeah. So yeah, I'm thankful for that. I have a husband that always encourages and corrects me. तो मैंने मेरे हस्बैंड से ये चीज शेयर किया कि मुझे ऐसा ऐसा ये चीज मैंने एक्सपीरियंस किया इस टाइम में. So I shared all this experience with my husband. तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एनकरेज किया कि ये बहुत अच्छी बात है, उल्टा ये चीज तुम उससे शेयर करो ताकि वो चीज वो समझे कि हमको एज अ लेडी हमको घर किस तरीके से चलाना चाहिए, चाहे ज्यादा पैसा हो या कम पैसा हो, ये हमारा पैसा नहीं, ये परमेश्वर का पैसा है, हमको उसको हिसाब किताब देना है. तो हमको हमारे बजट में चाहे ज्यादा भी पैसा हो तो भी हम किस तरीके से एडजस्ट करके रह सकते, जी सकते, वो हमको उनको बताना चाहिए, एग्जाम्पल बनना चाहिए, इसमें हमको शाय फील नहीं करना चाहिए. So that time my husband encouraged me, and he told me that it is very good thing what you did, and that and you should not feel shy about it, and you should tell this thing to your friend that even though if we have less money or more money, it doesn't matter as much. Even if we have more money, then also we should know how to manage our home in that money which we have, because it is not our money, it is God's money. आई रियली थैंक गॉड कि वो सारी चीजों से लॉर्ड मुझे अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम लोगों के डर से या लोग क्या सोचेंगे वो सोच के हम कुछ परमेश्वर के विरोध में ऐसा कुछ काम करते थे जो हमको नहीं करना चाहिए. So I really thank God that God is speaking to me, and I've learned that while thinking about people, so many times we do certain things that in reality we should not be doing. इवन जैसे पार्शलिटी की कि हम कैसे भेदभाव करते हैं, इवन भाई बहन के अंदर होने दो, जो भी अपने चर्च के ब्रदर सिस्टर्स होने दो, या इवन मेरी खुद की बच्चियां होने दो. हम कभी कभी सोचते हैं कि एक बच्चा बहुत अच्छा है तो हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, या एक बच्चा बहुत नॉटी है जो हमको हमारी बात को समझता नहीं है, सुनता नहीं है, हम उसकी तरफ थोड़ा उसको निग्लेक्ट करने का कोशिश करते हैं. मतलब वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर से वो स्वभाव व्यक्त हो जाता है कि हम उस तरीके से करते हैं. Even in church sometimes we do partiality between some brothers or sisters, and it happens at our home in between our children also. Suppose we have a child who is very naughty, and we tend to neglect that child, and we may give more attention to the other one. इवन छोटे बड़े का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि हम सोचते हैं छोटा है, हम उसको ज्यादा पैम्परिंग करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसको ज्यादा लविंग करते हैं. और बड़े बच्चे को मैंने देखा कि वो फिर एक उसके अंदर से वो कड़वाहट पैदा होती जाती है, बड़ा वो चाहे वो बोल नहीं पाता है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ, बट आगे जाके वही चीज हमको नुकसान करने वाली है. And this happens sometimes in relation to the age of the child, that we tend to give more love and more affection to the child who is the younger one, and this happens for a long time, and the elder child may feel neglected, and that thing that the child may not be able to express, but this thing hurts, and it does harm to us in the long run. मैं रियली लॉर्ड को थैंक यू बोलती हूँ. मैं ये प्रे कर रही हूँ कि लॉर्ड मैं एनी और सूजन में कभी भी ये चीज ना आने दूं. इवन मैं चाहती हूँ कि मैं एनी को ये चीज समझाऊं कि वो लविंग है हमारे लिए, अब भी, पहले भी थी और अब भी है. उसको ये चीज कभी मैं रियलाइज नहीं होने दूं, ताकि वो बड़ी हो जाए तब भी उसके दिल में वही प्यार इज्जत रहे कि मेरे माँ बाप ने कभी हम दोनों बहनों के बीच में भेदभाव नहीं लाया. And I pray to the Lord that, Lord, you help me that I should never discriminate between my two children, Annie and Susan, and that Annie should always know that their parents are loving to her, and when she grows also she should think that that they were never discriminated. Thank you. Praise God. Praise God. Yeah, very, very encouraging testimony from Brother Matthew and also from Sister Sunanda. और बहुत ही उत्साहित करने वाली गवाही और भाई मैथ्यू से हमने सुने और बहन सुनंदा से भी हमने सुना है. It's like very clear proof that God speaks. He's still in our midst and He still speaks to us. और यह इस बात का सीधा साधा प्रमाण है कि परमेश्वर हमारे बीच में है और वो हमसे बातें करता है. Bible says that the God's will for our life is our sanctification. अब बाइबल ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम पवित्र बने. Is everything God does is to make us more and more sanctified, more and more like
His Son, Jesus Christ. और परमेश्वर जो कुछ हमारे जीवन में करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमें और ज्यादा पवित्र बनाते जाएं कि हम यीशु के जैसे बने। So I strongly believe that this pandemic was a very swift, quick action God has taken to make us more like Jesus Christ. और मैं यह विश्वास करता हूँ और मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि यह जो महामारी मरी जो परमेश्वर ने अनुमति दी है लाने की और ये जो कार्य किया है यह हमें यीशु के समान बनाने के लिए परमेश्वर ने किया है। In my life, I become closer to God more in these 9 months than many years, past many years. और इन बीते 9 महीने की इस मरी के दिनों के बीच में जितना मैं परमेश्वर के निकट आया उतना मैं अपने जीवन भर के वर्षों में कभी नहीं आया। That is true with my family also. और यह मेरे परिवार में भी यह सच है। And C.S. Lewis said, God whispers in our pleasures, but shouts in our pain. और C.S. लुइस करके भक्ति में जो पुरुष है वो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर हमारे कानों में फुसफुसाते हैं लेकिन हमारे मन के अंदर वो चिल्ला कर बात करते हैं। He whispers in our pleasures, but he shouts when we are in pain. जब हम आनंद के दिनों में रहते हैं तो वो हमारे कानों में फुसफुसाते हैं लेकिन जब हम दर्द और तकलीफ में होते हैं तब वो चिल्लाते हैं। Pain is God's megaphone to awaken us and speak to us. और हमारे जीवन के जो दर्द और तकलीफ है वो परमेश्वर का एक बड़ा मेगाफोन के समान है, बड़े स्पीकर जैसे जो जोर से बात करता है। So when everything goes well with us, everything is going exactly the way we want, we are not tuned to listen to God. Our ears are not open to listen to what God is speaking. और जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और कोई भी तकलीफ हमारे जीवन में नहीं होती तब हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए धुन में नहीं है, परंतु brother, can you repeat? Our ears are not tuned to listen to God. लेकिन हमारे जो कान है वो सुर में नहीं है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। When things don't go well, things go against what we require, when we are in pain, that's the time we can hear the voice of God. In the midst of all the other voices we are hearing. लेकिन जब कभी हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में नहीं होता या हमारे जीवन में दर्द और तकलीफ, परेशानियां, संकट आ जाते हैं, यह वह समय होता है जहां पर परमेश्वर हमसे बातें करते हैं और कई सारी अन्य आवाजों के ध्वनि के बीच में हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। So this is what happened to my life also. This pandemic made me come closer to God. It helped me to turn my face towards God. और मैं अपने जीवन के विषय में भी कहना चाहता हूँ कि इस महामारी ने जिसे परमेश्वर ने भेजा और अनुमति दी है आने की, इससे मेरे जीवन में एक बदलाव को लाया कि मैंने अपने मुख को और ज्यादा परमेश्वर की ओर मोड़ा है। But it's very important for us to see that when we turn towards God, when the face of God shines upon us, everything else is taken care of. That is, the victory over sin automatically comes. परमेश्वर ने मुझे यह भी बताया कि जब कभी हम अपना मुख परमेश्वर की ओर फेर कर उनकी ओर आगे की ओर बढ़ते हैं तो परमेश्वर की उस तेज में जो हम पर पड़ता है, सारी बातों की हमारे जीवन में वह परमेश्वर देखरेख करता है। यहाँ तक कि हमारे जीवन में पाप के ऊपर जय पाना भी उसी रीति से आता है। There's a verse in Psalm 80 verse 3 says, "Restore us, O God, make your face shine on us, that we may be saved." भजन संहिता 80 के वचन 3 में कहता है, परमेश्वर हमको ज्यों का त्यों कर दे, अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। So makes your face shine on us, Lord, so that we'll be saved. तो परमेश्वर आप ऐसा करें कि अपने मुख का प्रकाश हमारे ऊपर चमकाए कि हमारा उद्धार हो जाए। So God, that is what the coming closer to God, we can see the face of God, the light of the face is shining upon us. Then life becomes, our priorities change, everything else in our life suddenly falls into place. और जब कभी हम अपना मुख फेर कर परमेश्वर की ओर लौट कर जाते हैं तब परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन पे पड़ता है और हम हमारे जीवन को और ज्यादा महत्व देने लगते हैं और हम परमेश्वर के अनुरूप बनने लगते हैं। The psalmist says, I have placed the Lord always, set him always before me. और भजनकार ऐसा भजन संहिता में कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को हमेशा निरंतर अपने दृष्टि में रखा, अपने सम्मुख रखा है। These 9 months is something which God dealt in our life. God taught us to be, seek God in everything, whether it is small thing or big thing. Seek God in everything.
अब परमेश्वर ने इन बीते 9 महीनों के इस मरी के दिनों में मुझे और मेरे परिवार को यही सिखाया है कि चाहे बातें छोटी हों, चाहे बातें बड़ी हों, परंतु हम हर एक बातों के लिए परमेश्वर को ही खोजें। Then we will find that if you seek God in everything, then we will find that our life becomes so smooth. You know, there's a highway in front of us because the Holy Spirit can lead us in a better way, prepare us for the days ahead in a better way. और मैंने पाया कि जब हम हर एक बातों में हमारे जीवन में परमेश्वर को ही खोजते हैं, तो हमारे लिए हमारा जो जीवन है वो बहुत ही आसान बन जाता है। बिल्कुल उस महामार्ग हाईवे के समान कि हमारा जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाए चलता है। God listens to our prayer when we are ready to accept anything which God says. अब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देते हैं तब जब हम चाहते हैं और इच्छा रखते हैं कि जो कुछ परमेश्वर चाहेंगे और परमेश्वर चाहते होने के लिए वह हम स्वीकार करें। Before we sit in the presence of the Lord to pray, ask ourselves, are you ready to accept anything which God tells us to do? जब कभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करने के लिए किसी विषय को लेकर बैठेंगे तो सबसे पहला सवाल आप अपने आप से करें, जो कुछ भी परमेश्वर आपसे कहेंगे क्या आप उसे अपने हृदय से स्वीकार करेंगे? I found in my life that 100% God answers our prayers when we are willing to do anything which He says. अब मैंने पाया अपने जीवन में 100% इसे सच पाया है कि जब कभी हम अपने हृदय में यह इच्छा रखकर स्वीकार करना चाहते हैं कि परमेश्वर आप जो कुछ करना चाहते हैं वह मुझे स्वीकार है, वह हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। Most of the time, in our heart of hearts, we are not ready to do anything which unpleasant, which God tells us. और कई बार ऐसा होता है कि किसी विषय को लेकर हमारे हृदय की गहराई के अंदर हम नहीं चाह पाते कि परमेश्वर जो चाहते हैं उसे हम स्वीकार कर सकें। This is something which we should ask in front of us, ourselves. Do we trust God so much that we are willing to do anything which He tells us? Then every single prayer will be answered instantly. और तब हम अपने आप से कहें कि परमेश्वर पर क्या मैं पूरी रीति से भरोसा करता हूँ कि परमेश्वर जो कुछ भी मेरे जीवन के लिए चाहेंगे उसे मैं स्वीकार कर सकूं कि परमेश्वर पूरा करे। Isaiah chapter 1 says about people who are coming to God with offerings and prayers. Isaiah chapter 1:13. और यशायाह की पुस्तक पहला अध्याय में ब्रदर विच वर्स 13 Yeah. उसका 13वां वचन कहता है कि जब लोग परमेश्वर के पास अन्य तरह के बलिदान और बलियों को लेकर आ रहे थे। It says that stop bringing meaningless offerings. Your incense is detestable to me. New moons, Shabbats, and convocations. I cannot bear your worthless assemblies. और यशायाह पहला अध्याय उसका 13वां वचन, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है, नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। It says about the sacrifice which mean nothing is we are just offering a sacrifice for the sake of sacrifice. There is nothing behind it. There's no our heart is there's no heart behind it. परमेश्वर यहाँ पर वचन में कह रहे हैं कि व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम बलि चढ़ा तो रहे हो मुझे, लेकिन वह सिर्फ नाम के लिए ही बलि चढ़ा रहे हो, वह केवल बलि है, उसके पीछे तुम्हारा दिल होना चाहिए, वह दिल नहीं है वहां पर। In the Old Testament, people go and sacrifice an animal, but the meaning they are offering their life at the place of an animal. Animal is only a substitute for offering themselves. अब पुरानी वाचा में परमेश्वर ने लोगों को अपने पापों के पश्चाताप के लिए बलि चढ़ाने को दिया था, तो लोगों ने उसे केवल अपने प्राणों की बलि के बदले एक जानवर के प्राणों की बलि को ही केवल माना। So if you don't mean things, God is so detestable. It is so detestable to God. तो यदि आप अपने जीवन में उन बातों का मूल्य नहीं जानते और महत्व नहीं देते हैं, तो परमेश्वर इन बातों से बहुत ही ज्यादा घृणा करते हैं। So 15th verse says, when you spread out your hands in prayer, I hide my face from you. Even when you offer many prayers, I am not listening. Your hands are full of blood. Wash and make yourself clean. और उसके 15वां वचन हम पढ़ते हैं, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। So it's that serious it is. So this is something which God has spoken to us, me and our family, that we should be very serious about when we come to God in prayer, willing to accept anything and mean everything which we speak to God.
और यह इतना गंभीर है जैसे हम इस वचन में पढ़ रहे हैं, और यही बात मुझसे और मेरे परिवार से परमेश्वर इन मरी के दिनों में परमेश्वर ने बात की कि यदि हम हृदय से यह इच्छा रखते हैं उन सारी बातों को स्वीकार करने के लिए कि जो परमेश्वर करना चाहते हैं वह हम स्वीकारते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। Another thing was, every instant we come to the presence of God, we believe that we are dealing with our heavenly Father. और जो कुछ भी इसके अलावा एक और बात है, जो कुछ भी हम हमारे जीवन में करते हैं या हम चाहते हैं, वह हमारे स्वर्गीय पिता के साथ में हम संबंध में रखते हैं। Sometimes we feel that we are dealing with our headmaster or a school teacher or policeman or something, but always clear our mind in such a way that when I come to God in prayer, I am coming to a Father who is in heaven. और हम हमारे जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ में हम लेन देन या व्यवहार करते हो, चाहे वह पुलिस अधिकारी हो या वह कोई शिक्षक हो, टीचर हो या कोई भी व्यक्ति हो, हमें हमारे मन में जब हम प्रार्थना में आते हैं परमेश्वर के सम्मुख यही बात हमारे ध्यान में रहे कि वह हमारा स्वर्गीय पिता है। Then everything we speak, our language changes, our approach changes, our words changes, everything will change. We have a totally different relation with God. और तब हमारा बर्ताव, हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा देखना, नजरिया सब कुछ बदल जाएगा, और क्योंकि हम अपने स्वर्गीय पिता के पास आए हैं। So thank God for this pandemic who brought us closer to God. अब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस मरी के लिए जिसने हमें परमेश्वर की ओर निकट लेकर आया है। Really appreciate the points which were shared by Brother Matthew, the 5 points: being nobody, being not jealous, not having expectation, not being free from the opinion of people. तो जो भी पॉइंट्स भाई मैथ्यू ने बांटे उन सभी के लिए मैं वे सभी बहुत सही पॉइंट्स मुझे लगे कि हमें अपने आप को कुछ भी नहीं ऐसे समझना चाहिए और द्वेष की भावना से मुक्त होना चाहिए और लोग क्या बोलेंगे उस भावना से भी हमें मुक्त रहना चाहिए। One character that came to my mind from the Bible, whom God dealt with very seriously, that person had an expectation from some other person, and God took it very seriously. और एक बाइबल में से एक जो व्यक्ति है जो मेरे अभी मन में आ रहा है, वह जिसके विषय में वह अपने दूसरों लोगों से कुछ पाने की आशा रखता था और उस व्यक्ति से परमेश्वर ने बहुत सख्ती से परमेश्वर उससे पेश आए। You all know the story of Esther. और हम सब लोग जानते हैं एस्थर की कहानी के विषय में। And by now you would have got the clue whom I'm referring to. That was Haman, the person who had some expectation, and God dealt with him seriously. और अभी तक आप शायद जान गए होंगे मैं किस व्यक्ति के विषय में आपसे बांटना चाहता हूँ। वे है हेमन के विषय में जो आशा रखता था किसी और व्यक्ति से और परमेश्वर ने उसके साथ सख्ती से बर्ताव किया। So those who don't know, I just want to quickly tell you what happened. और जिनको अभी नहीं पता मैं उनसे अब उनको बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। Haman was given the honorous position by King Ahasuerus, the Persian king. जो हेमन था उसको एक बहुत ऊंचा स्थान दिया गया था राजा अहश्वेरोस के द्वारा, king of Persia, जो कि पर्शिया का राजा था। And there was a Jew called Mordecai. और वहाँ पे एक यहूदी था जिसका नाम था मोर्देकाई। And whenever this Haman would pass by, he had made a decree that whenever I pass, all the people should, his expectation was all the people should stand up and bow before him. But Mordecai would not do that. तो यह जो हेमन व्यक्ति था उसका यह आशा था सबसे कि जब भी वह कहीं से गुजरे तो सारे लोग उसको नमन करें, झुककर नमन करें। और मोर्देकाई ये जो व्यक्ति था ये ऐसा नहीं करता था, यहूदी व्यक्ति। Because he feared God and he should bow before God only. Why should I bow before man? Even though he is some personality or king has given that position. तो मोर्देकाई परमेश्वर पर विश्वास रखता था और वह समझता था कि मैं किसी व्यक्ति के सामने क्यों नमन करूं। But ultimately we know that story, it's too long to tell another 2 minutes. Ultimately this Naaman wanted to hang Mordecai
by manipulating certain things in front of the king and proving him to be in the wrong position, then have him killed. But ultimately, Haman himself fell in his own trap and he got hanged in his position, Mordecai's place. तो ये जो हेमन व्यक्ति था, ये चाहता था कि वह मोर्देकाई को किसी झूठे आरोप में फंसाकर और कुछ उसकी सामने जाल बिछाकर उसको फंसाना चाहता था और उसको मरवाना भी चाहता था, परंतु वह जो भी जाल उसने बिछाया था वह खुद उस जाल में फंस गया और खुद उसको ही मरना पड़ा। God had killed him basically. और परमेश्वर ने ही उसको मारा। So that's the seriousness of having expectation or demands because of our pride or something like that. To expect people should treat me well, people should say hello, people should say kind words, or people should give me a smile when they see me. It's all kind of inward demand that we have. तो इतना गंभीर है दूसरों से अपने प्रति कुछ आशा रखना कि हम लोग जब कहीं जाएं तो व्यक्ति हमें मुस्कुराकर मिले या हमें हेलो बोलें, ये सब उम्मीद दूसरों से रखना कितना गंभीर है। It tests our humility basically. We listening about humility tests our humility, and God wants to be humble where we are. तो इससे हमारी दीनता की परीक्षा होती है और परमेश्वर चाहते हैं हमें जहां पर भी हम हैं हमें दीन रखना। And if we are not humble, if we are failing the test again and again, that God has to really correct us, spiritually kill us, spiritually not give light on our sin, continuing living in pride. That's a dangerous position we can face as believers. तो अगर हम बार बार इस परीक्षा में फेल होते हैं तो परमेश्वर हमें हमारे जो आत्मिक जीवन है उसकी आत्मिकता में हमारी मृत्यु भी हो सकती है हमारे आत्मिक जीवन की, और इस प्रकार से परमेश्वर हमसे डील कर सकते हैं। जो कुछ भी ब्रदर मैथ्यू ने शेयरिंग किया, मैं इस वचन को एंजॉय किया। Whatever Brother Matthew shared, I really enjoyed it. और वो उन्होंने जो शेयरिंग किया वो एकदम प्रैक्टिकली था हमारा लाइफ के अंदर। हम जब सुनते सोच रहे थे कि ब्रदर ने ऐसा प्रिपेयर नहीं किया रहेगा, बट उनका खुद का लाइफ से वो शेयर कर रहा है और मैं विश्वास करता कि सभी लोगों ने एंजॉय किया रहेगा। And whatever brother shared was such practical things, and I was just thinking that he must have probably not even prepared for this, but he just spoke as it came. और मैंने जब सुना मेरे खुद के लिए लाइफ के लिए चैलेंजिंग लगा मुझे। And these words were challenging for my own life. और मैं देखता हूँ कि अलग अलग तरीके से परमेश्वर हमसे बात करता है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इस वक्त परमेश्वर मुझसे इस तरह से बात कर रहा है कि कोई भी चीज हम परमेश्वर के लिए करते हुए एक रिचुअल नहीं होना चाहिए। God speaks to us in different ways, and I feel that God is speaking to me this time, and he's saying to me that whatever I'm doing should not be a ritual. रिचुअल मतलब एक रीति रिवाज। तो जब हम एक बाइबल पढ़ते हैं, बस मुझे पढ़ना है, आज मैं मीटिंग अटेंड करना है, मुझे संडे इसलिए मैं कर रहा हूँ, बट एक रीति रिवाज बन जाता है। वो आउट ऑफ लव नहीं है, एक भूख और प्यास नहीं है उसके अंदर। तो परमेश्वर उस चीज को एक्सेप्ट और ग्रहण नहीं करेगा। So by ritual I mean that something that we are just doing out of just doing it, like okay, I have to read my Bible today, or okay, I have to attend the meeting today. So it is something which is not really coming out of love, coming from the heart. और मैं ऐसा नहीं कि मैं एक शेयरिंग कर रहा हूँ, बट मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खुद मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं परमेश्वर से, मेरे को फियर डर लग रहा है कि प्रभु मैं कोई भी चीज ऐसा नहीं करना चाहता हूँ कि एक रिचुअल के तौर पर, जैसे एक रीति रिवाज, शेयरिंग हो या कुछ प्रेयर हो या कुछ भी हो, एक रिचुअल। प्रभु मुझे प्लीज इस चीज से बचा, मैं खुद इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे खुद के लिए। And while I'm sharing all this,
I'm also feeling in my own heart that, Lord, I do not want to do anything for you out of a ritual, whether it is sharing or whether it is sharing the word or any other thing. I do not want to do it. I fear that I should not be doing it as a ritual. हमें देखते हो कि यूहन्ना 5:44 में लिखा है कि परमेश्वर उनको वहाँ पर एनकरेज करे कि तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वो आदर जो परमेश्वर की ओर से आता है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास करते हो? Can you So, read it? yes, brother. So in John 5, verse 44, it reads, how can you believe when you receive glory from one another and you do not seek the glory that is from the one and only God? देखते हो कि परमेश्वर वचन को लेकर कितनी बार मुझसे बात किया कि एक दूसरे का ग्लोरी, एक दूसरे का आदर सम्मान, लोग हमको तारीफ करते हैं अलग अलग इससे, वो चीज हमको हमारे लाइफ में लेना नहीं चाहिए, बट सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है, क्या बोलता है, वो इम्पोर्टेंट है. So God has spoken to me a lot from this verse that that we should not be seeking honor and glory from men, from other people, but the most important thing is, what does God think about us? और एक वचन में बताना चाहता हूँ, गैलेशियंस चैप्टर 3:6 में. And another verse which I want to share is from Galatians chapter 6 verse 3. उसमें लिखा है कि यदि कोई ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, वो अपने आप को धोखा देता है. So the verse reads as, for if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. ये वचन में मैं शायद संडे को, मैं लास्ट संडे को शेयर किया था. परमेश्वर मुझे इससे भी बात कर रहा है कि हम कुछ होने पर, एक व्यक्ति हमको कब पता चले कि मैं कुछ हूँ करके, जब हम ऑफेंड होते हैं कोई चीज को लेकर, कोई डिमांड हमारा पूरा नहीं होता है, हमको लगता है ऐसा होना चाहिए था, या और भी बहुत सारा चीज है हमारे लाइफ के अंदर, वो चीज पूरा नहीं होता. इसका मतलब ये वचन हमको, मुझे बता रहा है मेरे खुद के लिए कि विजय तो बड़ी हो गया है. So I think I shared this verse even last Sunday, and from this verse, I think what God is trying to tell me is, whenever we are trying to have any kinds of demands and expectations from others, that happens because we think that we are something, and God is showing that to me, that Vijay, you are thinking that you are something. Yeah, God bless you. After listening to all this of each and every brothers and sisters that are being said, one thing I know, that there's been a lot of accusations on me, lot of people have spoken about me, lot of things have been pointed against me, even to my family, to friends and relatives and many people, but it doesn't bother me actually. और हमने हमारे बीच में भाई बहनों के द्वारा परमेश्वर का जो वचन सुना है, और मैंने अपने जीवन में भी पाया है कि मेरे जीवन के संबंध में कई सारे लोगों ने मेरे पीठ के पीछे कई सारी बातें की, मेरे कई सारे रिश्तेदारों के बीच में मेरे विषय में बातचीतें हुई, कई लोगों ने कुछ बुरा भी कहा, लेकिन अंत में उसने मेरे हृदय को बिल्कुल भी अशांत नहीं किया है. मुझे उस बात ने कभी भी तंग नहीं किया है. Many even think that I'm a hypocrite also. Brother, can you repeat? I said many think that I am a hypocrite also. कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं कपटी हूँ. But one thing I know, what the Lord tells me, I want to read from Zechariah chapter 3 from verse 1 to 7. Brother, हिंदी में पूरा पढ़ लो. Zechariah which chapter, brother? Chapter 3, chapter 3, 1 से 7. जकरिया अध्याय 3 वचन 1 से 7. फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाई दिया. शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था. तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़ के
यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़ के, क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहनाता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक योग्य शुद्ध पगड़ी रखी, उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा था। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यों कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले, जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी, मेरे आंगनों का रक्षक होगा। मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास में खड़े हैं। And this is my answer to the devil, because whenever things have been spoken against me, as it says, when devil was standing aside and accusing Joshua, but Jesus had another plan for him. और यही पर मेरा शैतान को उत्तर है कि जब कभी मेरे पीठ के पीछे मेरी बुराई की गई या मेरे विषय में कुछ बुरा कहा गया है, तो यहाँ पर जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि यहोशू के विषय में जब बुरी बातें हो रही थी और शैतान कह रहा था, तब परमेश्वर ने उसके लिए एक अलग योजना रखी थी। Yeah, maybe I might be having a bad garment on me. Garments means maybe my thoughts, the way I speak, my attitude. But God still says, I'm still removing all that against whatever filth is in you is being removed. और यहाँ पर हम जैसे पढ़ रहे हैं कि यहोशू के शरीर पर जो मैला वस्त्र पहनकर वो खड़ा था, तो वैसे हो सकता है मुझ पर भी कोई मैले वस्त्र हैं, मेरे विचार या मेरा स्वभाव या कोई मेरे जीवन की बातें जो मैली हैं, लेकिन आगे परमेश्वर कह रहे हैं कि उनको वो निकाल कर दूर कर रहे हैं और मुझे नया वस्त्र पहना रहे हैं। It's going to put a clean turban on me. और वचन आगे कहता है कि वो एक नया वो मुझ पर एक शुद्ध पगड़ी भी रखेंगे। So as I'm walking in the Lord, and I'm trying to walk in the Lord, but I thank each and every word as I keep walking into the Lord, each and every garment of mine which is filthy is being cleansed. जैसा कि मैं परमेश्वर में चल रहा हूँ और चलने की इच्छा भी रखता हूँ, तो यहाँ पर वचन कहता है उसके अनुसार वह मेरे मैले वस्त्र को उतार कर मुझे एक शुद्ध वस्त्र पहनाएंगे और मुझे पगड़ी भी मेरे सिर पर रखेंगे। Because I know God has a good plan for me, so I should not bother about what the devil speak against me, what he thinks against me. He can speak behind my back. He can speak whatever he wants, any filthy things against me. It doesn't bother me because I don't take any interest in all that, what people speak about me, because I know God has a better plan for me. Amen. और मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के प्रति एक अच्छी और अद्भुत योजना रखी है, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग या फिर शैतान मेरे विषय में क्या कहता है, मेरे पीठ के पीछे मेरी क्या बुराई करता है या फिर मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं इतना जानता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के प्रति एक अद्भुत योजना रखी है। आमीन।